managing part-time and also doing your assignments at the same time is not that easy. If you don't have a work experience back in India, तुम्हें ये assignments comparatively मुश्किल जाएंगी. Work experience means job work experience. हाँ, job work ये experience. podcast शुरू होते ही फाड़ रहा भाई. If you could get a chance, would you still pick IT? Right now, this state IT job roles usually land like software developer, a data analyst, cybersecurity analyst. What kind of roles? If not IT, which course would you have been chosen? Oh, sports management. Huh? But yes, IT does come under PR pathways. Regional jobs करो, जल्दी मिलेगा, पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं. क्योंकि IT के मास्टर्स में ना कुछ ऐसे भी कोर्सेस हैं जो बैचलर्स में नहीं है, और वो पढ़ने थे, तो उसके लिए एक बोनस एज अ बोनस सब्जेक्ट्स ही वांटेड टू स्टडी. अभी जॉब मार्केट जब मैं यहाँ आया बहुत डाउन था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया. 1 year ago. हाँ, बहुत डाउन था. Hi guys, hello, welcome back to another video. This is your Caps Vlogging. Today we are back with the same day, same location, similar location. We were shooting the last podcast here with Makarand. First of all, hello भाई. Makarand के बारे में बता दूँ आपको. Makarand मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा, हम दोस्त हैं और हम मेरे थे RMIT में ही. Makarand is doing IT, which he will obviously, you will tell. और ये this podcast is mainly is gonna be ऑन IT. बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे मिथ हैं. इट्स सो मच टू. व्हेन यू केम तुझको भी बहुत सारी प्रॉब्लम लगी होगी. तेने भी देखा होगा कि भाई प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, और जो तूने सोच के तू एक ड्रीमी वर्ल्ड में सोच के आया होगा, अब तुझे लगा नहीं भाई जो मैं सोच के आया था हो सकता है वो है या वो नहीं है. यू आर द स्पीकर टुडे, मैं नहीं बात करने वाला. सो द थिंग इज़, ये पॉडकास्ट है हिंदी में इंग्लिश में मिक्स रहेगा, और व्हाटएवर यू थिंक, the whole mic is yours, because Caps Talks, the new channel, इसकी theme ही यही है. The person who's sitting in front of me, he's the main guy. He or she is speaking. So initially, would love to know more about yourself. Okay. So my name is Makarand and I have completed my bachelor's in computer science back in India. So now I'm here for master's in IT. It's almost been a year. More 2 sems to go. Already halfway through the 3rd sem. Halfway to assignments time? Yeah, it's the submissions time, the most worst part. कैसा लग रहा है? It's hectic. Managing part-time and also doing your assignments at the same time is not that easy. No? No. Would love to know more about your background. You're back in India. Okay, so हिंदी पे आ जा. हाँ. तो अब वो रिलैक्स. नहीं, इंडिया में कैसा था कि टीचिंग मेथड और असाइनमेंट्स देना, इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट पार्ट. तो बैचलर्स जो मैंने कंप्यूटर साइंस में किया, इट इज़ अ रिलेटेड फील्ड है दोनों. सो कंप्यूटर साइंस में क्या होता था कि बहुत बेसिक लेवल के असाइनमेंट्स होते थे, रिटन नोट्स का होमवर्क होता था, सेम थिंग यू शुड डू इन स्कूल. Similar? आई एम नॉट इवन क्लोज टू बी ऑनेस्ट. यहाँ पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यहाँ आ रहा हूँ तो एक बिगिनर लेवल सिखाते हैं तुमको, बट असाइनमेंट्स में बिगिनर लेवल का असाइनमेंट्स नहीं होते हमारे लिए. क्या सिखाते हैं? इफ़ यू डोंट हैव अ वर्क एक्सपीरियंस बैक इन इंडिया, तुम्हें ये असाइनमेंट्स कंपैरेटिवली मुश्किल जाएंगी. वर्क एक्सपीरियंस मीन जॉब वर्क एक्सपीरियंस. हाँ, जॉब वर्क ये एक्सपीरियंस. पॉडकास्ट शुरू होते ही फाड़ रहा भाई. चलो आगे ले जाओ. If you are directly coming from bachelor's, so you might find it a bit difficult. If you're coming from India, if you're doing bachelor's of IT computer itself, then you might find it a bit easier because many subjects in bachelor's and master's are correlated to each other. For IT. Okay. Subjects. Would love to know more about subjects. क्या पढ़ाते हैं IT में? Generic बात करेंगे. RMIT तो you are telling. But would love to know more about what are the subjects they teach in IT Okay, so in Australia. in Australia देखा जाए तो हमें बेसिक कोडिंग तो होता ही है, पाइथन, जावा हो, डिपेंड्स ऑन विच फील्ड यू आर. डेटा साइंस में पाइथन होता है ज़्यादा, और IT में जावा होता है. सो ये एक स्मॉल डिफरेंस मैंने इस पिछले सेमेस्टर में नोटिस किया है स्टूडेंट्स के बीच में. Data science और IT. हाँ, डेटा साइंस और The different thing. डिफरेंट बट रिलेटेड टू ईच अदर. ये 2 अलग ब्रांचेस है. How? IT का पार्ट है डेटा साइंस बोलो, डेटा एनालिटिक्स बोलो, साइबर सिक्योरिटी बोलो, ये सब IT के पार्ट है. IT इज़ द मतलब बेस है, बेस जो रूट्स होते हैं ना. Biggest diagram. हाँ, बिगेस्ट वेन डायग्राम IT है. Okay. उसके नीचे जो ब्रांचेस है, ये सब डेटा साइंस, एनालिटिक्स या साइबर सिक्योरिटी, इसके ब्रांचेस है. सो IT में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है हमारा,
यू गेट टू चूज योर स्पेशलाइजेशन कि How? हमें कौन से फील्ड में जाना है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं हमने वो वैसेस में भी होते थे, अभी भी होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है ना, दोज हेल्प यू इन चूजिंग योर स्पेशलाइजेशन फील्ड। तो डिपेंडिंग ऑन विच सब्जेक्ट्स यू चूज एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर योर सेल्फ, यू गेट टू चूज योर स्पेशलाइजेशन। Okay. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी किसी ने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्लाउड के रिलेटेड लिए, तो उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा क्लाउड। अगर किसी ने 2 साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड लिए, तो उसका स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी हो जाएगा। तूने क्या लिया? आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। मेरा अभी Optional- लास्ट सेम बाकी है, तो आई एम कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन फॉर द लास्ट सेम। क्या क्या ऑप्शंस हैं? अभी एआई ऑप्शन है, ब्लॉकचेन है। AI एरिया है ना रिसेंटली? हाँ, एआई रिसेंटली आया, बहुत न्यू है, बट इट्स द मोस्ट वास्ट फील्ड। और वो आज के टाइम पे डिमांड। हाँ, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। ठीक है, AI। एआई है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड है, देन ऑब्वियसली यू हैव साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग का है। तो ये डेटा साइंस नहीं लिया तूने नाम? नहीं, डेटा साइंस को भी यही सब है। बस डेटा साइंस में क्या होता है ना, थोड़े कम ऑप्शंस होते हैं। तुम्हारा जो इतना ब्रांच होता है ना, इट गेट्स अ बिट नैरोअर। डेटा साइंस राइटिंग में पढ़ाते क्या है? पढ़ाते सेम है, बट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट्स सपोज अभी देखो कैसा होता है। हमें टोटल कंपलसरी देखा जाए तो 4 4 3 8 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं ओवर द 4 सेम्स। तो ये जो 8 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आईटी और डेटा साइंस के, कुछ कुछ सेम होते हैं, कुछ अलग होते हैं, बट कंपलसरी दोनों को होते हैं। और आईटी के सपोज मैंने पकड़ लिए 6 सब्जेक्ट्स, और डेटा साइंस के 6 सब्जेक्ट सेम सेम है। जो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना दोनों में, और एक्स्ट्रा बचे हुए, दोज वोंट बी द सेम। ओके, वो अलग रहेंगे दोनों के लिए, ठीक है। क्योंकि डेटा साइंस इज मोर पाइथन ओरिएंटेड देन आईटी। डेटा साइंस, कंप्यूटर लैंग्वेज है वो। मान लो मैंने डेटा साइंस स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स हो गया पॉडकास्ट, बट एनीवेज मान ले मैं आईटी पढ़ना चाहता हूँ और तू मान ले तू आईटी पढ़ना चाहता है, मैं डेटा साइंस पढ़ना चाहता हूँ, हम लोगों में कोर डिफरेंस क्या रहेगा? कोर डिफरेंस होगा कोर डिफरेंस वही होगा कि हमारा जो टेली लैंग्वेज होगा, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा रहेंगी अगर मैं आईटी कर रहा। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है ना चूज करने का। बाय द टाइम आई गेट टू माई एंड सेम, लास्ट सेमेस्टर, आई कैन गेट आइडिया ऑफ द मार्केट डिमांड्स क्या है। डेटा साइंस वाले को आइडियाज नहीं होते? ज़्यादा आइडिया नहीं, आप बस अभी समझ, डेटा साइंस किया चूज, लास्ट सेम तक आ गया, मुझे एआई करना, यू कैन डू एआई। बट सपोज उसी बंदे को अगर साइबर सेक में जाना है, कंप्लीट ऑपोजिट फील्ड। डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के 2 अलग कोर्सेस से आ रहे हैं आईटी में ही। तो डेटा साइंस वाले को अगर साइबर सिक्योरिटी करना है, तो ही कांट स्विच एट द लास्ट मोमेंट, जो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास वो ऑप्शन है। आईटी वाला कर सकता हाँ, है। मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो ऑप्शन है, क्योंकि आई हैव टू चूज माई ओन फील्ड स्पेशलाइजेशन के लिए। अगर नहीं भी करता स्पेशलाइजेशन चूज कुछ, अगर मैं सपोज लास्ट सेम में 2 अलग अलग स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट लेता हूँ, इवन देन आई हैव ऑप्शन इन बोथ द फील्ड्स में, दोनों फील्ड्स में जॉब कर सकता हूँ, जॉब ढूंढ सकता हूँ। वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास होता है। वाह। यस। और ये मेरा सजेशन है, मुझे नहीं पता ज़्यादा, तुझे एआई में नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, और मैं सोच भी रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही, क्या क्यों डबल माइंडेड हो रहा है? डबल माइंडेड नीड्स कि लॉन्गिटिविटी कितना है इसका। लॉन्जिटिविटी तो अभी तो शुरू ही हुआ है एआई। हाँ, बट जिस ग्रेड से ग्रो हो रहा है, उस अगले रेट 15-20 साल कांट गारंटी ना। साइबर सिक्योरिटी फिर कि उसके बाद साइबर सिक्योरिटी पक्की साइबर है। सिक्योरिटी 100% है, साइबर सिक्योरिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एवर बूमिंग राइट नाउ। हाँ, वो भी बूमिंग है, क्योंकि अगर एआई गोज आउट ऑफ कंट्रोल, इट्स आई डोंट थिंक इट वुड सूनर, क्योंकि जो स्पीड से ग्रो हो रहा है, ऑल्सो स्पीड से, मतलब पीपल आर कंट्रोलिंग इट एज वेल, वी कैन से वन और द अदर For वे, now. यस, फॉर नाउ यस। वन और द अदर वे। आगे का वी कांट बी श्योर अबाउट इट। और इसका स्पेशलाइज्ड कोर्स भी है जस्ट टू टेल यू, ये मास्टर्स इन एआई है आरएमआईटी में। ऑस्ट्रेलिया में है, ये रिसेंटली चालू है, 2-3 साल पहले चालू। हाँ, मैंने भी उसके साथ वीडियो पिछले साल ही बनाई थी, आई बिलीव वो रिसेंटली आया, बट जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, क्योंकि एआई के ना क्या है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है इसकी मार्केट में। तो सब लोग ना एआई आईटी रिलेट नहीं कर पा रहे, बट उन्होंने बताओ कि आईटी में एक स्पेशलाइजेशन आती है एआई, अगर आप वो पढ़ लेते देन यू आर इनटू दिस एआई पार्ट, राइट? एआई में क्या होता है, तुम्हें कोर से ही सब एआई का सिखाया जाता है, हाउ टू बाईपास एआई, या फिर हाउ टू, कि बनता कैसे, एपीआई कैसे काम करती हैं, और ये सब स्टार्टिंग से सिखाते हैं। आईटी में अपने उसका उससे भी नीचे वाला पार्ट से स्टार्ट करते हो। कि कंप्यूटर रिलेटेड बाइनरी नंबर से 0 1s। यस, और कैन से दैट। तो हाँ, ये डिफरेंस है दोनों कोर्सेज में। एआई थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है बहुत। थोड़ा सा ना, बिकॉज यूर इन आईटी फील्ड से यू नो अबाउट इट, थोड़ा सा मेरी ऑडियंस के लिए कह ले, मान लो मेरे शायद मेरी मम्मी देख रही है, मेरे पापा देख रहे हैं,
मैं अपने मम्मी पापा की बात करता हूँ, मैं किसी की नहीं बोलूँगा, उनको समझना है। उनको समझाने के लिए थोड़ा एआई समझाएगा कि एआई है क्या? इज़ इट एक्चुअली दे थिंक इट्स अ ह्यूमन, दे थिंक इट्स अ मशीन, व्हाट इज़ इट? थोड़ा एक्सप्लेन प्लीज़, ईज़ी वर्ड्स। AI इज अ ह्यूमन मेड मशीन बोल सकते हैं इसे हम लोग, जो विच इज मेड टू रिड्यूस टास्क फॉर ह्यूमंस। हमारा काम आसान करने के लिए बनाया हुआ मशीन है AI। बट ये तो बाकी मशीनें भी हैं। हाँ, बट अभी AI का जो ग्रोथ हो रहा है, इट इज़ ग्रोइंग इन अ वे कि इट इज़ बिकमिंग मोर ह्यूमन माइंडेड। ये इंसान जैसे सोचने लगा है, इंसान जैसे सोच के अपने टास्क करना सीख रहा है वो। ठीक है। सो मे बी इन फ्यूचर हमें जॉब छोड़नी पड़ेंगी उसकी वजह से। ओके। क्योंकि रिसेंटली मुझे पता चला था एआई के बेसिस पे आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो, बिल्ट अप। अभी भी कर सकते हैं, बहुत फ्री टूल्स है ऑनलाइन, हुँ। तुम वो यूज़ करके अब भी अपना फ्री में वेबसाइट बनवा सकते हो। मुझे पता चला था इसके बारे में। दैट्स व्हाई आई वाज़ लाइक थिंकिंग कि मैं इस चीज़ को मैक के साथ कवर अप करूँ कि चल क्या रहा है मार्केट में। बट एनीवेज़ कमिंग बैक टू दिस, थोड़ा-सा ना बहुत बड़ा वेन डायग्राम में घुस गए थे, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अगर आपको चाहिए डू कमेंट, आई विल आस्क हिम टू कम और एआई के ऊपर बात करेंगे बिकॉज़ ही इज़ इन द फील्ड सो ही नोज़। स्टूडेंट एक्सपीरियंस, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्टफ। व्हेन यू चोज़ ऑस्ट्रेलिया, Okay. व्हाई डिड यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया और व्हाई डिड यू चूज़ आरएमआईटी और दिस यूनिवर्सिटी? एंड व्हाट अदर ऑप्शंस डिड यू हैव इन योर माइंड? सो बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली मैंने बहुत रिसर्च करा है इसके बारे में। आई वाज कंसिडरिंग आयरलैंड बिफोर ऑस्ट्रेलिया, बट आयरलैंड में क्या होता है, ये जो कोर्स 2 साल में यहाँ सिखाते हैं ना, वो मास्टर्स 1 ही साल में होता है वहाँ पे। एंड वो 1 साल का मास्टर्स डिग्री बहुत कंट्रीज़ में दे डू नॉट कंसीडर इट एज़ अ मास्टर्स डिग्री, दे डू नॉट फॉर जॉब्स, दे वो बड़ा consider वियर्ड। नहीं करते, नहीं। तो वो पढ़ाई के हाँ, वो कुछ-कुछ कंट्रीज़ में चलता है, लेकिन जहाँ हमें अगर सपोज़ इंडिया में जा रहे हो तुम मास्टर्स करके 1 साल का, इट्स नॉट कंसिडर्ड, उतना वैल्यू नहीं होता उस डिग्री का। ठीक है, 2 साल में करो, टाइम लो, सीखो, टाइम भी का सीखने के लिए, वो भी अच्छी चीज़ है कि तुम्हें 1 साल में सब कुछ एकदम तुम्हारे सिर में एक साथ नहीं डाला जाता सब कुछ, थोड़ा टाइम मिलता है ब्रीथ इन करने। ब्रीथ इन करने के लिए। यस, टू टेक अ स्टेप बैक टू सिट एंड एनालाइज थिंग्स। तो आरएमआईटी चूज़ करने का ये एक रीज़न था मेरा कि 2 ईयर कोर्स, और कोर्स तो आईटी करना था फॉर श्योर। आई हैड अदर ऑप्शन, बट मैंने फिर सोचा कि सिंस आई हैव बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, आई वुड रादर डू आईटी। एंड ऑस्ट्रेलिया आई थिंक क्योंकि इट्स वेरी सेफ, पहला जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है, जो आईटी के लिए प्रोजेक्ट जनरेट होते हैं मोस्टली यूएस और ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं। सो यहाँ लर्निंग के लिए, लर्निंग के हिसाब से आईटी इज़ अ वेरी बिग थिंग टू डू। ओके। हम्म। आयरलैंड के अलावा कुछ सोचा हुआ है? नहीं। चूजिंग आईटी, मान लो मुझे नहीं पता तेरे को इसके बारे में इतना पता है, बैचलर और आईटी में और मास्टर्स ऑफ आईटी में इज एनी डिफरेंस? ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा। अभी बैचलर्स कोर्स जो है वो 7 साल का ही होता है। मेरे बैचलर्स ऑफ आईटी के भी बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, कुछ कुछ क्लासेस उनकी और हमारी सेम सेम है। वी स्टडी इन द सेम क्लास, वी सिट टुगेदर, मास्टर्स बैचलर सेम? कुछ सब्जेक्ट सेम है बोल सकते हैं। यूनिट्स, ओके। तो अगर सपोज कोई बैचलर्स कर रहा है, मेरे हिसाब से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अगर सपोज तू बैचलर्स कर रहा है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मेरे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स तेरे कवर हो रखे होंगे बैचलर्स में। सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ जॉब आफ्टर बैचलर्स रादर देन कंटिन्यूइंग मास्टर्स अगेन। देन व्हाई डू दिस? देयर स्टिल पीपल हु डू इट। हाँ, मेरा एक और दोस्त है, वो कर रहा है अभी बैचलर्स भी, उसने यहीं से किया है आरएमआईटी से, मास्टर्स भी उसने यहीं से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ज़्यादा सीखना था, क्योंकि आईटी के मास्टर्स में ना कुछ ऐसे भी कोर्सेस है जो बैचलर्स में नहीं है, और उसको वो पढ़ने थे, तो उसके लिए एक बोनस, एज अ बोनस सब्जेक्ट्स ही वांटेड टू स्टडी मास्टर्स। मुझे ऐसा लगता है तेरा थोड़ा एक हेल्दी पॉइंट ये भी रहा होगा कि तेरे पास नॉलेज है। बीएससी कंप्यूटर साइंस कर दी तूने? बीटेक। बीटेक करी है, सो यू नो कंप्यूटर में, जी। so you know stuff, you know computer how does it work, right? So you will be like, इतना तेरे प्रश्न है क्योंकि मैंने देखा है आईटी में बैचलर या कोई मास्टर करने आए कई लोग कुछ ऐसे बैकग्राउंड से भी घुसते हैं, सॉरी टू कॉल यू आउट, बट कॉमर्स बैकग्राउंड से भी लोग घुस जाते हैं। हाँ, आते हैं। प्रॉब्लम आती है उनको। बहुत प्रॉब्लम आती है उनको। तेरे को कम से कम वहाँ एक एडवांटेज पॉइंट मुझे लगता है मिला होगा। बोल सकते हैं। ठीक। हाउ शुड स्टूडेंट डिसाइड वेदर टू स्टडी विद लाइक एक सेकंड, मैं पूछना लगा था बट नहीं, यार पॉइंट क्वेश्चन तो ऑलरेडी जवाब दे चुका है। विच यूनिवर्सिटीज आर मोस्ट पॉपुलर इन आईटी इन ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू यू? फॉर आईटी आई वुड से कि
यूनी मेल ट्राई कर सकते हो। महंगी बहुत है, Right? महंगी बहुत है। हाँ, महंगी बहुत है। तो उससे अच्छा पॉइंट फिर RMIT है, RMIT is a good value in IT, man. क्योंकि इसका फुल फॉर्म नहीं है You इंस्टीट्यूट are ऑफ the टेक्नोलॉजी। Institute of Technology. It is in technology. सो हाँ, IT के लिए मैंने इसके अलावा IT के लिए कई अप्लाई किया था, पर लटरोप में किया था। But- Hmm? आई वॉज प्रेफरिंग RMIT टू बी ऑनेस्ट। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही था। How? Or did you choose only इसका मैंने ना दो ऑनलाइन RMIT की साइट है, उस पर IT का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ लिया था मैंने, एंड आई फाउंड इट वेरी गुड। बहुत हेल्दी है, मतलब जो सिखा रहे हैं ये लोग, इट इज़ यूज इन द इंडस्ट्री। प्रैक्टिकल्स भी सिखाते हैं, उतना ही प्रैक्टिकल्स को उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना थियरी को है। और थियरी लेक्चर्स का तुम्हें फिर रिकॉर्डेड असिस्टेंस भी मिलता है। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड क्लासेस फॉर एनी रीज़न, तुम घर बैठ के भी देख सकते हो। और कुछ चाहिए? और क्या चाहिए। बट इसमें ना मैं तेरे से एक छोटा सा हेल्प मांगता हूँ। जो बंदा देख रहा है इस टाइम, क्या है, तूने कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ा? कोर्स स्ट्रक्चर इज समथिंग विच इज अ रिटन फॉर्मेट। बराबर। मैं रिटन इन्फॉर्मेशन, मैं भी लोगों को ब्लॉग्स बना सकता हूँ। मैं व्लॉग्स क्यों बनाऊँ? ब्लॉग्स में इसलिए बनाऊँ तो बिकॉज रिटन स्टफ इज अ रिटन स्टफ, यू हैव डन इट और यू आर डूइंग इट, सो यू कैन स्पीक ऑन दिस कि भाई रियलिटी क्या है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट एनीवेज। तो when we were talking about this practical part, the teaching style in IT courses, or maybe in your course, more theory or more hands-on projects? Speak something which is not on website. आई वुड से मोर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा काम होता है इन पे, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, वो तो थियरी नॉलेज हो गया तुम्हारे पास। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी होता है, वो जो वर्क एक्सपीरियंस, जॉब वर्क एक्सपीरियंस ले आते हैं इंडिया से, उनके पास ऑलरेडी वो थियरी नॉलेज होता है। बट उनको फिर क्या होता है, उनको प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में ना कुछ चीज़ें ऐसी भी सिखाते हैं जो हमें थियरी में नहीं सिखाते। वो थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स बोल सकते हैं उसको, कि दे गिव यू सम टिप्स और ट्रिक्स, कम बोनस, बोनस नहीं बोल सकते से, सम आइडियाज हाउ टू टैकल सम प्रॉब्लम्स, या फिर सम कोड में कोई एरर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसे सॉल्व कैसे करना है, वो दे हेल्प यू इन दैट। तो प्रैक्टिकल बहुत है। IT में practical होने की जरूरत भी है। Theory is important, हाँ। you need to know terms, but practical is more important. मैं ऐसा मेरा मानना है, मेरा यही मानना है। बहुत सही। खुद तुझे अगर करना ही नहीं आया तो what do you need to तो do? इज यूजलेस। Do students get chance to work in real world IT projects or no? देखो अभी जो प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट है, इट इज़ फॉर सेम 4, अभी मैं सेम 3 में हूँ। सो नेक्स्ट सेम में हम एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड 24 क्रेडिट्स का कोर्स है, गुड प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमें, जहाँ तक मैंने सीनियर से सुना है, कि दे प्रोवाइड अस विद अ क्लाइंट जिनके लिए हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है एज अ ग्रुप, 3 or 4 पीपल, डिपेंड्स ऑन। तो टॉपिक्स भी हमें लिस्ट होती है टॉपिक्स का, यू हैव टू चूज एन प्रोजेक्ट टॉपिक फ्रॉम दैट, जो विच इज़ टू योर ग्रुप्स लाइकिंग। फिर तुम्हें उस हिसाब से क्लाइंट दिया जाता है, यू कैन वर्क विद द क्लाइंट एंड यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद देम, यू हैव क्लाइंट मीटिंग्स एवरी वीक, हर वीक में होती है, क्लाइंट के साथ बात होती है तुम्हारी। तो इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क, if you maintain good relations with the client you're working with, you might get an opportunity to work in real life. Understandable. How diverse is the class environment for IT students? हाँ, मतलब कितने कितने होते हैं? Is there so many Indians? Is there so many Chinese? ईमेल्स और चाइनीज से भरा हुआ है या बहुत भरा हुआ है। हार्डली कोई इसके बाहर का मिलता है हमें, इंडिया और चाइना से। बट हाँ, यही है पॉपुलेशन क्लास का, यही है तुम्हारा पूरा। Career pathways. How strong is the job market? I mean, you're still studying, Yeah. but you would have known about from the friends. How's the market right now? फिलहाल देखा जाए तो थोड़ा टफ है, वोंट लाई, क्योंकि प्रोजेक्ट्स एज सच आईटी में ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ AI डोमिनेंस, यू कैन से। सो एट दिस पॉइंट इट्स अ बिट टफ, बट इफ़ यू डोंट गिव अप, मतलब ट्राई करते रहो, इट्स नॉट लाइक कि नहीं ही मिलेगा, ट्राई करते रहो, यू विल इवेंचुअली लैंड अ जॉब। तू ए में भी नहीं घुस जाता? मैं सोच ही रहा हूँ ना, मेरा अभी आई हैव टाइम टू डिसाइड, अभी मेरे पास और तो भी प्रोज एंड कॉन्स वाली फील्ड पे 5 महीने मेरे पास और सोच। वी आर इन द प्रोज एंड कॉन्स वाली फील्ड में। ओके, मेक सेंस। फिर तो ठीक है। बट मैं, इजंट इट लाइक अ टिप फॉर अ पर्सन हु इज वाचिंग इट कि थोड़ा सा पहले सोच के आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा?
कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं कि उनको क्या क्या करना है। करना है? तो वो लोग डेटा साइंस लेते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी लेके आते हैं, उधर से स्टार्टिंग से वो लेते हैं। बट कुछ लोग लाइक मी, आई वाज नॉट श्योर कि मुझे आईटी में मतलब स्पेसिफिक क्या करना है, स्पेशलाइजेशन किस में करना है। आई वाज नॉट श्योर व्हाई आई वाज कमिंग हियर। थोड़ा ना मेरे को ऐसा लगता है यार, मैं इस चीज़ में ना ये भी बहुत मैटर करता है कि आपको पता होना चाहिए वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही नहीं है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, नहीं, या आपको पता ही नहीं है कि ये सब जो है ना, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये वैसे में हो रहते हैं। आई नो व्हाट इज क्लाउड, आई नो व्हाट इज ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी क्या, ये सब हमें सिखा चुके हैं बैचलर्स में। ओके, बस अभी जॉब मार्केट जब मैं यहाँ आया बहुत डाउन था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट ओनली। 1 ईयर अगो। हाँ, बहुत डाउन था ठीक है। क्योंकि कहीं से भी कहा भी प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे। अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। सो मेरा यही था कि मैं उस टाइम पे मैं मास्टर्स का मतलब जब खत्म होने आएगा तब आई वुड सी द मार्केट, जॉब मार्केट कैसा होगा, एंड उस हिसाब से तब तक चूज कर चुका होगा। हाँ तब तक मैं चूज़ करूँगा। फिर वही है ना कि अगर सपोज अभी मैं मार्केट देख रहा हूँ, मेरा लास्ट सेम बाकी, मैं मार्केट देख रहा हूँ एंड आई एम सीइंग कि अभी साइबर सिक्योरिटी का डिमांड है, एआई का डिमांड है, तो मैं उस हिसाब से चूज़ कर लूँगा उस टाइम पे। ठीक है, तो आई कैन, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए था मुझे कि मैं चूज़ कर सकता हूँ मेरा कोर्स। तेरे पास विंडो होगी सोचने की। हाँ, बाई चांस फॉर एग्जाम्पल तू स्पेशलाइजेशन चूज कर लेता है साइबर सिक्योरिटी या एआई, तो तुझे पता चलेगा कि जब तक मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ तब तक मेरे पास इतना टाइम होगा कि अगर नहीं होता है तो तू स्विच कर सकता है। बराबर। मेक सेंस। टॉकिंग ऑन दिस, does this, I mean, that's a good question. Does, because हर लोग इसमें आ रहे हैं, does IT actually connect with VR pathways? Do you know about it? Do you have researched about it? आई डिड रिसर्च बट इतना डेप्थ में रिसर्च नहीं किया मैंने कि, बट यस आईटी डज कमांडर पीआर पाथवेज मिलता है। रीजनल जॉब्स करो, जल्दी मिलेगा, पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। और यस यू जस्ट हैव टू गेट इन एज सून एज पॉसिबल। प्रोफेशनल ईयर है, यू नो अबाउट प्रोफेशनल ईयर कर सकते हैं 1 साल का, उसका पॉइंट मिलते हैं, बट आई डोंट नो कब तक रहने वाला है। लोग कह रहे थे बंद हो जाएगा वो, बट एनीवेज वील सी ऑन दिस। ओके, what kind of IT job roles usually land, like software developer, a data analyst, cyber security analyst? What kind of roles, क्या किस तरीके के रोल्स निकलते हैं? निकलते तो फिर वो कंपनी की डिमांड्स पे कि उनको क्या रिक्वायरमेंट। जैसे अभी सपोज जैसे नेक्स्ट वाले कंपनी, नाम नहीं लेंगे, तो उनको सपोज अभी डेटा एनालिस्ट चाहिए तो दे विल ओपन जॉब ओपनिंग्स फॉर ओनली डेटा एनालिस्ट्स। उनको दे वोंट हैव एनीथिंग टू डू विद साइबर सिक्योरिटी का है। उनको जो चाहिए उस टाइम पे, उनको जो डिमांड है उस डिमांड पे ही बेसिस पे वो हायर करते हैं। जैसे अभी हमारे करियर फेस होते हैं आरएमआईटी में, तो वहाँ पे हमको वी गेट टू कनेक्ट विद सम पीपल ऑफ कंपनीज, तो उनसे बात करते करते वी नो कि इन कंपनी को क्या चाहिए, इस कंपनी को क्या चाहिए, उस हिसाब से फिर वो होता है, उनका हायरिंग भी उस हिसाब से ही होता है। लोग बीट इंटर्नशिप्स बीट द जॉब। good quote. Beat internship, beat a job. Okay, and eat beetroot. Are employers in Australia open to bring hiring international students? International student को हायर करने में फील तो नहीं आती बुरी? What do you think? इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि जो फील्ड में नहीं आया है। हाँ, और जो करियर फेयर में भी आते हैं, दोनों टाइप से कंपनीज आती है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हायर करने वाली होती है और जो नहीं करने वाली होती है। दोनों टाइप की कंपनीज आती है career fairs में। जो उन्हें डोमेस्टिक हाँ, कुछ कंपनीज होती है जिनको बस सिटीजन चाहिए, कुछ होते हैं विच आर वेरी ओपन टू इंटरनेशनल हायरिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जस्ट डोंट मिस आउट ऑन द करियर फेयर्स वंस यू आर इन द यूनी। 2 साल का कोर्स है तो 2 करियर फेयर्स तो यू कैन अटेंड फॉर श्योर। डोंट मिस अ चांस टू अटेंड दोस। ओके, मेक सेंस, टोटली मेक सेंस। ओके, थोड़ा सा कॉस्ट और वैल्यू पे होते हैं। हाउ मच कॉस्ट कृष्ण मास्टर्स हैव? ओके, सो इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो इट कुड कॉस्ट अराउंड 36 to 40 lakhs। होल कॉस्ट 4 2 years? या 2 years। तो पर ईयर इट विल बी 8 9 से 10, okay. 9 से 10 पर ईयर? और आप No, per year 20. Per sem it's 9 lakh something around. Okay, Indian rupees. But it keeps on changing, so I would say make sure to have a look on the website, right? Okay. Do you think the degree is worth the investment compared to the career outcome? क्योंकि तूने कहा मार्केट अच्छी नहीं है, मुझे लगता है अभी वर्थ इट रहेगी कोई पढ़ना चाहे वो, या इसे देख करके स्पॉटलाइट को देख के डिसाइड कर रहा है कि क्या मुझे आईटी में जाना चाहिए, इससे क्या मैसेज देना चाहेगा ऑन दिस डे? सी विच डे कैन आई बोलूँ, मैं जो सोच के आया था कि मैं सोच के आया था कि मुझे
जॉब लेना है इस कोर्स में यहाँ आके। तो इफ़ यू आर वेरी श्योर कि तुमको जॉब करना ही है तो तुम निकाल लोगे। निकाल लोगे। तो इट इज़ वर्थ इट, आई वुड से। आई फाइंड इट वर्थ इट। डिपेंडिंग सिचुएशन हो गई ना बहुत। सिचुएशन तेरा तेरा तो यू मेंशन कि मैं सोच के आया था, जो थोड़ा स्केप्टिकल हो रहा उसके लिए क्या बोलेंगे? जो स्केप्टिकल हो रहा है, देखो फिर ऐसा है कि इट्स ऑल अप टू, आई वुड से, योर माइंडसेट कि तुम्हें पहले ही डिमोटिवेट होकर आना है या फिर यहाँ आके कुछ करना ही है। अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर 50-50 है तो आई वुड से कि थोड़ा सोच के ना जो रेशियो है वो चेंज करो, ताकि तुम्हें बेनिफिट हो यहाँ आके। यू वोंट फील कि तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो सीखने में, ऐसा। मेक सेंस। क्योंकि इस चीज़ की कंफर्मेशन तो दुनिया में कोई नहीं देने वाला कि आपको ये कोर्स करने के बाद यहाँ जॉब $10 मिलियन छाप दोगे। मैं हाउ डू स्कॉलरशिप्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स हेल्प इन IT टू मैनेज योर एक्सपेंस? ये भी एक टफ पार्ट है कि पार्ट टाइम जॉब मिलना मुश्किल लगा मुझे बहुत मुश्किल गया इनिशियली, बट लेटर मिल गया। और क्योंकि एक साल से तो मैं देख रहा हूँ यू हैव स्ट्रगल्ड नो दिस। आई ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। मैं सामने बोलता हूँ कैमरे पे, इसने बहुत स्ट्रगल किया टू गेट अ जॉब, एंड उसके बाद भी वो जॉब कभी चले जाती थी या कुछ और इशू आ जाता था। व्हेन ही डजंट डू एनीथिंग, द कंडीशंस वर डूइंग समथिंग एंड ही वाज लाइक मेन विक्टिम बोलते हैं, विक्टिम, ही वाज गेटिंग विक्टिमाइज्ड। तो हाँ, इनिशियली पार्ट टाइम मिलने में बहुत मुश्किल गई, बट मिलने के बाद एक क्या होता है ना कि तुम्हें डिपेंड्स, तुम्हें कौन सा टाइप का जॉब मिल रहा है, तुम्हारा मैनेजर कैसा है। अभी फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर को इमरजेंसी में कोई लगता है तो दे कॉल यू, दे डोंट केयर कि तुम पढ़ने आए हो, तुम पढ़ रहे हो, उन्हें बस उनका स्टोर चलाना है। कुछ होते हैं अच्छे, कुछ समझते कि हाँ बच्चे पढ़ने आए हैं, तो अगर तुम लोग बोल रहे हो कि मैं कल मेरा लेक्चर है मैं नहीं आ पाऊँगा, तो दे अंडरस्टैंड, तो फिर वो तुम्हारे लिए कवर ढूंढ लेते हैं अपने लिए खुद से। तो बट मैनेजिंग बोथ इज समथिंग विच यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो यहाँ आने का, तो कुछ सोच के लिया होगा तुमने स्टेप को। वैल्यू। यस। और ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग को बस काम काम करना है, यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि तुम पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दो। दूसरा लाइफ भी इंजॉय करो। हाँ, लाइफ भी इंजॉय करो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के एक ही चीज़ में लगे। थोड़ा सा बैलेंसिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। एवरीवेयर इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। स्टडी, जिम, clubs. He does play football, cricket, football. So if he would be doing it right now and he wants to, then he will be balancing that with the job condition. So it's all about balancing. But anyways, well, थोड़ा सा एक एंड की तरफ जा रहे हैं हम। प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट आर द बिगेस्ट एडवांटेजेस? चेकलिस्ट चाहिए मुझे तेरे से। स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया IT, ओह, स्टडिंग में IT पढ़ते हैं तो क्या बेस्ट प्रोज एंड कॉन्स? सबसे बड़ा तो हमने पूरे ब्लॉग में बात की बारे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। कोर्स कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी कुछ भी पाथवे तुम चूज कर सकते हो। सेकंड आई वुड से इसकी नॉलेज बहुत है यहाँ पे। ओके। यू कैन कनेक्ट विद टीचर्स एनी टाइम इफ यू वांट। तुमको बस एक छोटा मीटिंग बुक करना होता है टीचर के साथ, यू कैन डू दैट। तुमको पीयर काउंसलिंग मिलता है, अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड जा रहा है तो सीनियर्स होते हैं, दे कैन एनरोल, जो तुम्हें पढ़ा सकते हैं सीनियर्स, वो पीयर मेंटरिंग में वो होता है। दीज आर सम एडवांटेजेस आई फाइंड इन दिस कोर्स। Okay, makes sense. What are the challenges or struggles an international student who is going to be studying IT might face? सबसे बड़ा स्ट्रगल होगा तुम्हारे असाइनमेंट्स और पार्ट टाइम मैनेज करना। आई एम फाइंडिंग इट वेरी हॉरिबल राइट नाउ। बहुत असाइनमेंट्स आ पड़ी है और काम भी है, तो दोनों मैनेज करना इज़ वेरी बैड। Solution क्या है? सोल्यूशन क्या है? आई वुड से कि Daily. डेली पढ़ना ही है, और इफ़ नहीं ही हो रही असाइनमेंट्स ऑन टाइम तो कुछ शिफ्ट्स कैंसिल कर सकते हो अपनी। हाँ, obviously, वो yeah, कर- ये that's a bigger issue भाई, thank you. हाँ, क्योंकि तुमको पढ़ाई के लिए आए हम लोग यहाँ पे, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो ट्राई प्रायोरिटाइजिंग स्टडीज। Obviously, I agree with you. Okay, what's the advice for someone, final advice from your side, that would be studying IT in Australia in next upcoming years? ओके, Maybe 26, maybe 27. आई वुड सजेस्ट कि प्लान आउट करके आना। कोर्स स्ट्रक्चर है, सब वेबसाइट पे है, तो लुक एट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू डू। यहाँ आके यू कैन चेंज योर माइंड अ बिट, बट
हाँ, इस बात है बी श्योर कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट करना हाथ है, लेना है। सब सारे सब्जेक्ट्स का सारा आउटलाइन सब दिया हुआ है वेबसाइट पे, गो थ्रू इट। यू विल गेट हेल्प। यस, अगर तेरे को मौका मिले, if you could get a chance, would you still pick IT right now in this state? यस आई वुड। You would still, Yeah. you know the market is not good, you know the things are going bad, you're still good. क्योंकि एक बार क्या है ना, इस फील्ड में एक बार घुस गए ना तो निकलना मुश्किल है फिर जैसे जॉब में। हाँ, हाँ, मेन स्ट्रीम जॉब लग गई तो उसके बाद लेकिन very नहीं, easy, ग्रोथ मिल जाएगी। बहुत ईजी है इसीलिए, और इंक्रीमेंट्स भी बहुत होते हैं। What else you mean like? What's your one golden tip for international student dreaming an IT career? That's the last question. ओके, गोल्डन टिप फॉर Doing this IT, you know, ओके, जो अभी कर रहे हैं जो करना चाहेंगे। ओ करना चाहेंगे उनके लिए करो यार। एक बार अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें और पढ़ना है, पढ़ो। जब तक पढ़ पा रहे हो तो इससे एक उम्र के बाद पढ़ना नहीं होता, हाँ, इसके ऑब्वियसली नहीं होता। अभी मौका है, पढ़ लो। मौका है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो गो फॉर इट, डोंट थिंक मच। डोंट सोचो मत फिर। वेल, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत ही सही जवाब दिए हैं। बट तेरे जाने से पहले मैं क्लास ही करूँगा। मैं मेरे पॉडकास्ट में मैंने शुरू किया है, रैपिड फायर खेलते हैं चलो, ठीक है? रैपिड फायर राउंड। फेवरेट कोडिंग लैंग्वेज पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस। पाइथन, और पहले जवाब दे दिया। बेस्ट यूनिवर्सिटी लैब और स्टडी स्पॉट फॉर IT स्टूडेंट्स। लैब्स, ड्रीम IT जॉब इन ऑस्ट्रेलिया आई विल गो फॉर डेटा एनालिस्ट। इन अ गुड कंपनी। यस, ओके, मोर एक्साइटिंग AI, साइबर सिक्योरिटी या डेटा साइंस? बिगेस्ट चैलेंज इन IT स्टडीज, असाइनमेंट्स, ग्रुप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और कोडिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स, यू शुड फाइंड अ वेरी गुड ग्रुप फॉर प्रोजेक्ट्स। कोडिंग बग्स भी नहीं हो जाते। नहीं, मैकबुक और विंडोज फॉर IT? विंडोज, इन्हें बोलो भाई, विंडोज, प्लीज गेट अ विंडोज। गिव अ रीजन। क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो मैकबुक में चलने के लिए यू नीड एक्सटर्नल टूल्स विच इज़ अ वेरी बिग हैसल, तो विंडोज ले लो यार। या तो दोनों ले लो या विंडोज ले लो। दोनों मतलब विंडोज ले काफी। ठीक। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स IT लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया फॉर यू। वन वर्ड। स्ट्रगल। स्ट्रगल। ओके, इफ नॉट IT, which course would you have been chosen? ओह, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। हाँ, या तो कहाँ से कहाँ ले गया भाई? हाँ, पूरा मुझे लगा साइबर सिक्योरिटी AI से बोलेगा। बोला भी कि मेरे थे बीच में कुछ अलग ऑप्शंस, बट मैंने फिर आईटी चूज किया मास्टर्स करने के लिए, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस कर रखा है। क्योंकि तो उस डिग्री पे इस पे भी जॉब अप्लाई कर सकता था। हाँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। यस, देखा तो कर रहा इसे इसके बारे डीकिन में। में किया था। क्या कोर्स है? डीकिन में है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, प्रॉपर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स, ओनली इन डीकिन। पढ़ाते क्या? ओह, आपको पता है? मतलब पहले तो तुम्हें जनरल होता है, तुमको स्पोर्ट्स चूज करना है, कौन सा स्पोर्ट तुमको यू प्रेफर, फिर उसके रिलेटेड तुमको फिर वो मैनेज कैसे करना है, टीम्स मैनेज कैसे करनी है अगर टीम स्पोर्ट है, फिर हाउ टू एनालाइज स्ट्रेटेजाइज, वो सब सिखाते हैं। ओके, वेल, बेस्ट सिटी फॉर IT जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन? मेलबर्न। Universal so is it? Okay. Last part. What's one application or tool you can't live without as an international IT student? ओह, आई वुड से VS स्टूडियो। क्यों? VS को कोडिंग का है। Oh, okay. I thought it was VN, वो video Visual Studio, Visual Studio. What does it do? इट हेल्प्स इन कोडिंग, पाइथन, जावा, जो भी हो, जो उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर। उसी बेसिस पे। मैंने थोड़ा सवाल आ रहा है, जाने से पहले मैं यही पूछ लेता हूँ। जो तूने मुझे बोला था कि IT में प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, मीन्स कि IT में सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। IT में प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर बनता है और क्या बनता है IT में? टेस्टिंग भी होता है, फिर जो भी टेस्टिंग होता है, बैक एंड फ्रंट एंड जो भी होता है वो सब रिलेटेड, पूरा को एक टीम वर्क है ये टोटल, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सारे अलग अलग जो पोजीशंस होते हैं वो सब मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। ओके, इसीलिए। ओके, वेल, थैंक यू सो मच। अरे भाई क्या सवालों के जवाब दिए तूने, तेरी ग्रिप बहुत टाइट हो गई है भाई न्यूज़। ऐसे भाई मैं मेरे को मारेगा क्या? तो दिस वाज मैक एंड मुझे तेरे जाने से पहले ये चीज़ चाहिए, इफ़ दे वॉन्ट हैव एनी क्वेश्चंस, इफ दे कैन कॉन्टैक्ट यू इन एनी ऑफ द लाइक इफ यू वांट टू गिव योर लिंक्डइन, योर इंस्टा, व्हाटएवर यू आर ओके विद इट। या वो LinkedIn और इंस्टा दोनों। Okay, I'll give his contact in the description. So make sure to DM or question if you have. But मैं तेरी तरफ से बोलता हूँ, हे लिख के मत भेजना। मैसेज रिक्वेस्ट में जाता है हे दिस इज दिस एंड दिस इज द क्वेश्चन, नहीं तो वो देख के भी सोचते हैं, मैं भी देख के सोचता हूँ हे, अरे हे के आगे तो बोलो। और अच्छा इंस्टाग्राम ने फीचर कर दिया कि ना ओनली ओनली, पहले से एक ही मैसेज भेजा कर, इसका हाई चला गया बेचारा भेज नहीं सकता। बट एनीवेज,
थैंक यू सो मच मेरे भाई, तूने आया बहुत सारे करके, मुझे बहुत चीज़ें क्लियर हुई तेरे उससे। एंड दिस इज कैप्स लॉक, दिस इज मैकरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो या पॉडकास्ट लोगों को समझ में आए, इन्फॉर्मेशन जो आई है। आप चाहते हैं इसका एक और पार्ट बनाएं, टेल अस इन द कमेंट, वी विल। मैक का कॉन्टैक्ट, आपके पास क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, मेरे पे कॉन्टैक्ट्स हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सब्सक्राइब दिस न्यू चैनल बिकॉज द मेन आइडिया ऑफ दिस चैनल इज टू गिव एवरीवन अ माइक एंड दे कैन स्पीक। द चैनल का नेम क्या है? कैप्स टॉक्स। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। फिर से टाइप कर पा। सी यू, सब्सक्राइब गाइस।